So once again, I welcome in the course Introduction to Fluid Mechanics. So today I will discuss the new module uh, that is called turbulent flow. We have already discussed the laminar flow in the pipe, and we have discussed that the how the flow will be laminar or transition or turbulent. So I have discussed the one dimensionless parameter that is called Reynolds number. So with the help of this Reynolds number, we can identify whether the flow is laminar or turbulent. So when I have discussed the laminar flow, so I told you that when the value of Reynolds number is less than 2000, in case of pipe flow, of course, so then the flow will be laminar. And if the value of Reynolds number is in between 2000 to 4000, then it will be in transition state. And we can say that if the Reynolds number value is greater than 4000 in pipe flow, then flow will be laminar. For the other medium like for the soil, for the open channel flow, and for the boundary layer theory, I have discussed the value of Reynolds number for the laminar, turbulent, and transition phase. So let us start. What is the turbulent flow? So in turbulent flow, firstly I will discuss the condition for the turbulent flow, and then I will discuss the how to compute the shear stress in the turbulent flow, and then velocity distribution in the turbulent flow. So this is the pattern of the turbulent flow results from the instability of laminar flow. When the stability of laminar flow will disturb, then it will start the turbulent flow. So here we can see that the velocity distribution versus time, and we can say the in the distribution there is a turbulence created. If there is no turbulence, so the velocity distribution will be smooth. तो दिस लेट अस अज्यूम दिस इज द मीन वेलोसिटी. ये लाइन जो है वो हमारा मीन वेलोसिटी है, और जो u जो है वो हमारा क्या है, तो u जो होगा हमारा लोकल वेलोसिटी है, वो इस मीन वेलोसिटी से, और जो हमारा जो वेलोसिटी आ रहा है किसके वजह से, जो डिस्टर्ब कर रहा है या तो जो फ्लक्चुएटिंग हो रहा है, उसमें क्या रिलेशन है. तो हियर वी कैन राइट लोकल वेलोसिटी और जनरल वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी प्लस यू डैश. यू डैश हमारा क्या है, फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी, जो फ्लक्चुएट कर रहा है ड्यू टू द किसके वजह से, टर्बुलेंट फ्लो के. तो टर्बुलेंट सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे कंडीशन क्या है. तो हमने बोला था कि लैमिनार फ्लो में जो होगा, लैमिनार फ्लो में हमने देखा था कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे. तो एक डायमेंशनलेस पैरामीटर था. क्या डायमेंशनलेस पैरामीटर था, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर, जिसको हमने देखा था कि रो बीवीडी बाई म्यू. अगर इसकी वैल्यू हमारा लेस देन इक्वल टू 2000 है, देन हमारा फ्लो क्या हो जाएगा, फ्लो इज लैमिनार. अगर 2000 एग्जैक्टली है मतलब क्रिटिकल कंडीशन में है. फिर हमने बोला था कि अगर आरई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4000 हो जाए, देन इन दैट केस आवर फ्लो जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा. तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है एक डायमेंशनलेस पैरामीटर, जिसको हमने बोला भी था क्या, कि रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स. और जब हमने इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स की वैल्यू को जब हमने पुट किया था, तो एक हमें एक एक्सप्रेशन मिला था, that is rho vd by mu, or we can write vd by nu. Either we can write this Reynolds number in terms of dynamic viscosity or kinematic viscosity. That depends the condition of the situation of the problem. किस तरह का प्रॉब्लम दिया हुआ, प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, whether it is given the dynamic viscosity or kinematic viscosity, accordingly we will apply. Once we have computed the Reynolds number, then we will compare whether the value is less than 2000 or in between 2000 to 4000, or it is greater than 4000. If the value is greater than 4000, then our flow will be turbulent. Then the expression of the velocity and the shear stress will entirely different from the laminar flow. We have seen that the shear stress distribution in the laminar flow, that is the, if I talk about the expression, so my shear stress is minus del P by del X into R by 2. But here in turbulent flow it will not look like that. The viscosity, the shear stress distribution will depends on the various parameters. So let us discuss the shear stress distribution in the turbulent flow. So shear stress, total shear stress can be written as, let us assume कि जो total shear stress है, total shear stress जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, that the sum parts will contributed in the laminar flow, that is laminar flow, plus some parts will contributed by the turbulent flow.
एंड हमने लैमिनार फ्लो में एक और भी हमने देखा था कि जब हमारा लैमिनार फ्लो हो, सो टर्बुलेंट लैमिनार फ्लो में हमें शियर स्ट्रेस कैन बी रिटन एज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी म्यू du by dy, प्लस टर्बुलेंट में जो होगा टर्बुलेंट फ्लो में, सो तो वेरियस रिसर्चर्स ने इस एक्सप्रेशन को अलग अलग दिया है। मतलब कि बहुत सारे, जैसे अगर मैं बात करूं तो अलग अलग रिसर्चर्स ने इसका एक्सप्रेशन अलग अलग दिया है। तो इसके एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखूं तो अभी तो मैं ये यही लिख देता हूं कि टर्बुलेंट फ्लो। अब इसके बारे में हमें नहीं डिस्कस करना है। जब हमारा का पूरा फ्लो अगर टर्बुलेंट होगा तो वहां पे विस्कस इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। मतलब कि ये जो शेयर स्ट्रेस जो होगा म्यू du by dy वो लगभग जो है हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो टर्बुलेंट फ्लो में हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो टर्बुलेंट फ्लो में सबसे पहले अगर देखा जाए तो एज पर बॉजिनेस इक्वेशन अगर देखा जाए, सो एज पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बॉजिनेस्क, एज पर बॉजिनेस्क, जो उन्होंने दिया था कि हाँ शेयर स्ट्रेस जो होगा टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एटा du by dy। और इन्होंने एटा को क्या बोला, तो एटा जो है हमारा यहाँ पे क्या है, तो इसको एटा को बोला गया कि एडी विस्कोसिटी, एडी विस्कोसिटी, एडी विस्कोसिटी है। और du by dy तो वही है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है। यहाँ पे u बार अगर मैं बोलूं तो u बार जो है हमारा जो है वो दैट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हमारा जो है एवरेज वेलोसिटी है। उसी तरह अगर यहाँ पे एटा बाई अगर मैं रो कर दूं, जैसा कि दैट इज वेरी सिमिलर टू द डायनामिक विस्कोसिटी में हमने म्यू को बोला था डायनामिक विस्कोसिटी, यहाँ पे एटा को मैंने बोला एडी विस्कोसिटी। उसी तरह काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हमने क्या बोला, म्यू बाई रो। तो यहाँ भी अगर एडी विस्कोसिटी को अगर हम डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी द एडी विस्कोसिटी, जो एडी काइनेमेटिक विस्कोसिटी उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एटा du बार बाई dy, जहाँ पे y जो है हमारा क्या है, पाइप के किसी भी पाइप वॉल से जो है डिस्टेंस है y की, और जो r जो u बार जो है वो हमारा एवरेज वेलोसिटी है। अब इसी के एक्सप्रेशन को दूसरे साइंटिस्ट ने, रिनॉल्ड्स साहब एक थे, तो अकॉर्डिंग टू रिनॉल्ड्स ने कुछ अलग ही एक्सप्रेशन दिया था टर्बुलेंट फ्लो में जो शेयर स्ट्रेस है। तो टर्बुलेंट फ्लो में अगर लिखा जाए तो टर्बुलेंट फ्लो में इन्होंने दिया था कि रो इंटू यू डैश इंटू वी डैश, वेयर यू डैश वी डैश क्या है, तो यू डैश और वी डैश जो है हमारा फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी है एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ यू डैश और वी डैश को लिख दे कि टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि फ्लो जो है हमारा अब बिल्कुल जिगजैग पोजीशन में पहुंच गया है, तो वहां पे जो हमारा वेलोसिटी जो होगा वो फ्लक्चुएट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि यू डैश और वी डैश जो है वो क्या है हमारा फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। अब यहीं पे जो है द फादर ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स किन्हें बोला जाता है, प्रेंटल साहब को। तो प्रेंटल ने क्या बोला कि हाँ ये जो फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी जो है, जो फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी है उसको कैसे निकाला जाए, तो फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी कैन बी कंप्यूटेड, और बोला कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा एक्स और वाई डायरेक्शन में दैट विल बी द सेम। तो यहाँ पे यू डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो उन्होंने एक प्रेंटल मिक्सिंग लेंथ से एक एक्सप्रेशन दिया जिसको बोला जाता है एल इंटू du by dy। और उसी तरह एक्सप्रेशन ऑफ v जो बोला कि जो फ्लक्चुएशन जो होगा वो x और y डायरेक्शन में वो उन्होंने सेम लिया, और उसके जिसके वजह से आपका फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी x और y डायरेक्शन में दैट विल बी द सेम, और यहाँ पे l इंटू du by dy। अब यहाँ पे जो L क्या है, तो L को बोला जाता है यहाँ पे क्या, du by dy जो हमारा पहले हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट है। यहाँ पे L जो है उसको बोला जाता है प्रेंटल सॉरी स्पेलिंग जो होगा PRANDTL, प्रेंटल मिक्सिंग लेंथ। और इस प्रेंटल मिक्सिंग लेंथ ने जो लेंथ है उसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल के, बिकॉज यहाँ पे अभी हम कैपिटल के भी कुछ देर में यूज करेंगे। अभी तो समझ ले कि क्या है ये स्मॉल के इंटू वाई। वाई क्या है, तो वाई जो है हमारा क्या है कि पाइप के वॉल से जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा वाई है। लेट अस अज्यूम कि ये हमारा पाइप है, ये हमारा अगर पाइप है कुछ इस तरह, दिस इज आवर पाइप, ये हमारा सेंटर लाइन है, तो वाई जो है हमारा ये पाइप वॉल से डिस्टेंस है, और जो स्मॉल आर जो लेंगे हम लोग लेंगे सेंटर लाइन से, पहले भी हमने लिया है, ठीक है। के को बोला जाता है कारमान कांस्टेंट। एक साइंटिस्ट थे वॉन कारमान, तो इसको बोला जाता है कारमान कांस्टेंट, और इन्होंने कांस्टेंट की वैल्यू को भी बता दिया कि आपको 0.4 लेना है।
तो अगर आप ये यू डैश और वी डैश के वैल्यू को अगर आप रखोगे, पुट करोगे शियर स्ट्रेस के एक्सप्रेशन में, तो क्या हो जाएगा हमारा टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस। तो टाउ जो शियर स्ट्रेस है हमारा टर्बुलेंट फ्लो में क्या हो जाएगा, इन टर्बुलेंट फ्लो, सो दैट इज इक्वल टू रो इनटू यू डैश इनटू वी डैश। फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी, और फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी हमने देखा कि रो इनटू एल डी यू बाई डी वाई, और फिर यहाँ पे v भी जो है वो सेम ही है, l इंटू डी यू बाई डी वाई। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, दिस एक्सप्रेशन इज रो एल स्क्वायर डी यू बाई डी वाई होल स्क्वायर। सो दिस इज द शियर स्ट्रेस एक्सप्रेशन जो है वो हमारा अकॉर्डिंग टू रिनॉल्ड्स, जो रिनॉल्ड्स है उनके अकॉर्डिंग जो हमारा आया है टर्बुलेंट फ्लो में जो शियर स्ट्रेस है वो हमारा ये आया है रो एल स्क्वायर। अब एल की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो हमने बताया है कि एल की वैल्यू क्या होगा। एल जो है हमारा मिक्सिंग लेंथ है, डी यू बाई डी वाई जो है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, और रो जो है हमारा डेंसिटी है। तो टोटल शियर स्ट्रेस जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो टोटल शियर स्ट्रेस, टोटल शियर स्ट्रेस वो हमने बताया अभी अभी लिखा था कि टोटल शियर स्ट्रेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, लैमिनार फ्लो में प्लस आपका जो हो जाएगा वो शियर स्ट्रेस इन द टर्बुलेंट फ्लो व्हेन द फ्लो इज टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट फ्लो, अब हमने बोला कि जब पूरा का पूरा लैमिनार फ्लो होगा तो इसके विस्कोसिटी का इफेक्ट बहुत कम हो जाता है, तो इसको हमने क्या ले लिया, नेग्लिजिबल ले लिया। मतलब कि शियर स्ट्रेस जो टोटल जो टर्बुलेंट के केस में होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रो एल स्क्वायर डी यू बाई डी वाई होल स्क्वायर। तो एक चीज का ध्यान रहे कि जब टर्बुलेंट फ्लो होगा तब शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन जो है, अब किसी को डाउट हो रहा होगा कि सर आपने लैमिनार फ्लो में जो एक्सप्रेशन पाइप फ्लो में बताया था जो माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई टू, लेकिन बेस जो था जो डिराइव जो जब किया गया था वो इसी एक्सप्रेशन को यूज किया गया था, म्यू डी यू बाई डी वाई। ओके, तो वहां से वो चीज आया था। यहाँ पे जो आप टर्बुलेंट फ्लो में जो आप लगाओगे तो यहाँ पे रो एल स्क्वायर डी यू बाई डी वाई का होल स्क्वायर जो होगा वो हमारा टोटल शियर स्ट्रेस होगा। अब जैसे हमने टोटल शियर स्ट्रेस या टर्बुलेंट में जो शियर स्ट्रेस का जो एक्सप्रेशन है वो हमने अगर जान लिया है तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फ्लो इन पाइप्स। तो अभी हमने एक्सप्रेशन जो डिस्कस किया है कि हमारा शियर स्ट्रेस है वो कितना है, रो एल स्क्वायर डी यू बाई डी वाई का होल स्क्वायर। यहां से आप क्या लिख सकते हो, डी यू बाई डी वाई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टॉ बाई रो इंटू एल स्क्वायर। अभी हमने बताया था जस्ट पहले कि जो एल जो है वो क्या है, प्रेंटल मिक्सिंग लेंथ है। तो एल की वैल्यू को हम लोग क्या रख सकते हैं, के इंटू वाई, पुट द वैल्यू ऑफ एल। सो क्या हो जाएगा यहाँ से डी यू बाई डी वाई जो होगा वो क्या होगा, और यहाँ से आप जो है डी स्क्वायर है तो वहां से डी यू बाई डी वाई निकालो और फिर इंटीग्रेट करके देखिए एक्सप्रेशन कितना आ रहा है। अब देखो और एक्सप्रेशन निकालो यू का कितना आ रहा है। एक कांस्टेंट आएगा तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है बाउंड्री कंडीशन से निकाल लेंगे। तो ये सबसे पहले निकाल के देखिए कितना आ रहा है वैल्यू। सब लोग निकालिए, इसको सॉल्व करिए। जब सॉल्व करेंगे तो मैंने बोला कि पैरेंटल मिक्सिंग लेंथ जो है वो L इज इक्वल टू के वाई, पुट द वैल्यू ऑफ L। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी वाई का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टॉ बाई रो इंटू के स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब यहीं पे एक एक्सप्रेशन है टॉ बाई रो, टॉ बाई रो को बोला जाता है शियर वेलोसिटी। यहीं पे एक एक्सप्रेशन है, ये भी एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि एक जिसको लिखा है शियर वेलोसिटी। शियर वेलोसिटी क्या होता है, जिसको हम लोग यू स्टार से डिनोट करते हैं, और ये यू स्टार जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ जो आपका हो जाएगा टॉ बाई रो, स्क्वायर रूट ऑफ टॉ बाई रो। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि डी यू बाई डी वाई जो होगा वो क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये तो स्क्वायर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी यू बाई डी वाई का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू टॉ बाई रो स्क्वायर के स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से डी यू बाई डी वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग। तो डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई के वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टॉ बाई रो। अभी हमने बताया कि ये टॉ बाई रो हमारा क्या है, शियर वेलोसिटी यू स्टार। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू यू स्टार डिवाइडेड बाई के इंटू वाई। तो यहाँ से हम लोग डी यू आप निकाल लो, डी यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यू स्टार डिवाइडेड बाई के इंटू वाई इंटू डी वाई। अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे यू का एक एक्सप्रेशन आ गया। यू स्टार तो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यू स्टार डिवाइडेड बाई के, यहाँ पे एल एन वाई प्लस सम कांस्टेंट। अब पुट द वैल्यू ऑफ के, हमने बताया है कि जो के जो है वो क्या है,
कारमान कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू को हमने बताया कि 0.4, तो यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू, तो 1/0.4 मतलब कि 2.5 u स्टार ln y प्लस c। तो ये हमारा जो है लोकल वेलोसिटी या जनरल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है इन टर्म्स ऑफ यू स्टार। लेकिन हमारे पे यहाँ पे c जो है वो इंटीग्रल कांस्टेंट है, तो ये इस c के एक्सप्रेशन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कब निकालेंगे, जब व्हेन y इज इक्वल टू r, जब y की वैल्यू जब है वो r के इक्वल हो जाए तो वहां पे हमारा क्या होगा, u जो होगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमने जो पाइप बनाया है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे जब y की वैल्यू r हो जाएगा मतलब सेंटर पे, तो सेंटर पे हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कंडीशन रख दो, व्हेन u y इज इक्वल टू r, सो तो u इज इक्वल टू u max, पुट द वैल्यू ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, u max इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5 u स्टार, ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा वो 2.5 u स्टार, और फिर यहाँ पे ln y के जगह पे हमने r रख दिया है, तो ln r प्लस c, तो यहाँ से हमने c कांस्टेंट निकाल लिया है, वो कितना हो जाएगा, तो u max माइनस 2.5 u स्टार ln r। अब ये वैल्यू c जो है वो आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे आप पुट कर दो इसके वैल्यू को, तो आपका जो जनरल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता चल जाएगा। सो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, u इज इक्वल टू तो था ही 2.5 u स्टार ln y, तो यहाँ से 2.5 u स्टार ln y प्लस सम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू को भी हमने निकाल लिया है कितना, u max माइनस 2.5 u स्टार ln r। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि u इज इक्वल टू 2.5 u स्टार कॉमन ले लिया हमने, तो 2.5 u स्टार, तो यहाँ से क्या आ गया ln y माइनस r, मतलब कि क्या लिख सकते हैं ln y बाई r प्लस u max। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका u माइनस u max, u माइनस u max या u max माइनस u भी अगर इसको लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, u max माइनस u जो हो जाएगा, u max माइनस u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2.5 u स्टार ln y बाई r। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका u max माइनस स्मॉल u डिवाइडेड बाई u स्टार, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.5 ln r बाई y कर दे क्या, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -1 हमने कर दिया, तो इन्वर्स कर दिया इस वैल्यू को, तो 2.5 ln r बाई y। तो यहाँ से हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया है जो u max माइनस u डिवाइडेड बाई u स्टार दैट इज इक्वल टू 2.5 ln r बाई y। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन है जनरल जो है, जिससे हम लोग क्या है वेलोसिटी को हम लोग निकाल सकते हैं। जहाँ पे r समझ लो क्या है, r जो है हमारा रेडियस ऑफ द पाइप है, r जो है हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द पाइप, स्मॉल u जो है वो जनरल वेलोसिटी है, u max जो है हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी है। कहाँ पे मैक्सिमम होगा, जब y की वैल्यू r हो जाए, या सेंटर वेलोसिटी है, सेंटर लाइन की वेलोसिटी है जो हमारा u max है, और u स्टार जो है हमारा क्या है, शियर वेलोसिटी। सारा चीज को हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या है u max जो है हमारा क्या है, जिसको बोला जाता है सेंटर लाइन वेलोसिटी। कहाँ पे होगा ये, तो व्हेन y टेंड्स टू r, y इज इक्वल टू कैपिटल R आ जाए। r हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द पाइप, r जो है हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द पाइप, और फिर u जो है हमारा क्या है, लोकल वेलोसिटी, और u स्टार के बारे में तो मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि ये क्या है हमारा, शियर वेलोसिटी, जिसको एक्सप्रेशन को हमने देखा है स्क्वायर रूट ऑफ टॉ बाई रो, या टॉ नॉट बाई रो बोलते हैं, जब शियर स्ट्रेस, वॉल शियर स्ट्रेस हम लोग निकालते हैं तो उससे हम लोग u स्टार भी निकाल सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमें मांगा जाएगा, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी दिया हुआ है तो लोकल वेलोसिटी, या किसी डिस्टेंस पे बोला जाएगा कि एट ए y इज इक्वल टू सर्टेन डिस्टेंस बोल देगा आपका पाइप वॉल से, वहां से आपका कितना वेलोसिटी होगा, तो आप y की वैल्यू देगी, तो यहाँ पे रेडियस तो मालूम है, मैक्सिमम वेलोसिटी अगर आपको पता है, या तो दो इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक्सप्रेशन को आप लोग याद रखिएगा, टर्बुलेंट फ्लो में ये होता है। उसके बाद यहीं पे एक चेक किया जाता है कि वेदर जो हमारा जो सरफेस है वो रफ है या हमारा स्मूथ है, तो उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो जिसको बोला जाता है कि हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ और रफ बाउंड्री कब होगा। तो हाइड्रोडायनामिकली रफ या स्मूथ बाउंड्री हमारा कब होगा, उसके लिए जो है एक टर्म है जिसको बोला जाता है, जो एक फैक्टर है जिसको बोला जाता है, क्या है वो फैक्टर, जिसको बोला जाता है के कैपिटल, अब यहाँ पे कैपिटल मैं क्या दिखा रहा हूँ, डिवाइडेड बाई डेल्टा स्टार। अब दोनों चीज को समझ ले क्या है,
सबसे पहले कैपिटल के को हम लोग लिख रहे हैं, क्या है कैपिटल के जो है हमारा हाइट ऑफ रफनेस, हाइट ऑफ रफनेस। लेट अस अज्यूम कि ये हमारा कुछ है इस तरह का हमारा फ्लो हो रहा है, फ्लो कुछ इस तरह का हमारा हो रहा है, जिगजैग मतलब टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो हाइट ऑफ रफनेस, एवरेज हाइट ऑफ, लेट अस अज्यूम कि ये हमारा हमने निकाला है, ये हमारा एवरेज हाइट ऑफ रफनेस है, रफ की वजह से ये टर्बुलेंट हो रहा है, इसको हमने क्या मान लिया है के। अब डेल्टा स्टार क्या है, तो डेल्टा स्टार को बोला जाता है लैमिनार सबलेयर। लैमिनार सबलेयर क्या होता है, तो लैमिनार सबलेयर क्या होता है कि जब तक हमारा फ्लो लैमिनार था और जैसे लैमिनार के बाद जब फ्लो चेंज हो रहा है टर्बुलेंट में, लेकिन कुछ ऐसा पीरियड भी होता है जिसमें कि पूरा का पूरा फ्लो जो है वो टर्बुलेंट नहीं हुआ है, स्टिल सम इन द सम रीजन फ्लो इज स्टिल लैमिनार। एक ऐसा रीजन जहां पे कि फ्लो अभी भी लैमिनार ही है, तो उसलिए उस रीजन को बोला जाता है क्या, लैमिनार सबलेयर। फिर से मैं बता रहा हूं क्या है कि जैसे हमारा फ्लो जो चेंज हो रहा है लैमिनार टू टर्बुलेंट या ट्रांजिशन स्टेट में गया है, लेकिन कुछ पोर्शन जो है आपका सरफेस से एक ऐसा पोर्शन, द सम पोर्शन वेयर द फ्लो इज स्टिल लैमिनार, हमारा फ्लो अभी भी लैमिनार ही है लेकिन बोला जा रहा है कि ये टर्बुलेंट में चला गया है, उस पोर्शन को क्या बोला जाता है, लैमिनार सबलेयर। तो वो हाइट जो होती है जो ये हमारा है वो इसको बोला जाता है हाइट ऑफ द लैमिनार सबलेयर या थिकनेस ऑफ द लैमिनार सबलेयर। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं के बारे में सबको समझ में आ गया, हाइट ऑफ रफनेस है, और यहीं पे डेल्टा स्टार के बारे में अगर बोला जाए तो डेल्टा स्टार जो है हमारा क्या है, इसको बोला जाता है कि लैमिनार सब लेयर थिकनेस। और इसके एक्सप्रेशन ये ओपन चैनल में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको। डेल्टा स्टार जो होता है इसका एक्सप्रेशन के बारे में अगर लिखा जाए तो 11.6 न्यू बाई यू स्टार। अब इस पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि लैमिनार सब लेयर थिकनेस, अगर आपका वो इस तरह बोलेगा कि हाँ एक मान लो कि एक फ्लो हो रहा है किसी मीडियम में, और फ्लो जो है वो ये ऑब्जर्व किया गया है कि टर्बुलेंट फ्लो है, लेकिन सम रीजन में जो है देखा गया है, पाया गया है कि फ्लो जो है वो स्टिल लैमिनार है, मतलब ये समझ जाना है कि ये लैमिनार सब लेयर की बात कर रहा है, और बोलेगा कि थिकनेस कितना है, तो थिकनेस जो होगा उस थिकनेस पे उसकी हाइट जो होगी या थिकनेस जो होगी जहां पे फ्लो जो है स्टिल लैमिनार है वो कैसे निकाला जाएगा, सो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन 11.6 न्यू बाय यू स्टार। यहाँ पे न्यू क्या है हमारा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और यू स्टार तो फिर से मैंने बोला ही है कि ये क्या है हमारा, शेयर वेलोसिटी, shear velocity that is shear stress divided by density या wall shear stress divided by density. So once we know the value of kinematic viscosity and the shear velocity, so with the help of this we can compute the thickness of the laminar sublayer. कितना थिकनेस, कितने हाइट तक भाई जो है जो फ्लो है वो स्टिल लैमिनार है, उसके हाइट को हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसी के रेशियो को जो हाइट ऑफ रफनेस है और डिवाइडेड बाय डेल्टा है उससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि वेदर द सरफेस इज आपका जो है वो सरफेस रफ है या स्मूथ है या ट्रांजिशन स्टेट में है। तो अगर ये वैल्यू जो होना चाहिए इसके रेशियो का वैल्यू, मतलब कि एक फैक्टर जो है के बाई डेल्टा डैश, अगर इसकी वैल्यू जो है वो अगर लेस देन डेल्टा डैश या डेल्टा स्टार जो भी है, जो हमने डेल्टा स्टार लिया है लैमिनार सब, तो के बाई डेल्टा स्टार की वैल्यू अगर लेस देन हमारा 0.25 है, मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है हमारा जो सरफेस जो है वो क्या है, स्मूथ बाउंड्री है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं स्मूथ बाउंड्री। अगर ये के बाई डेल्टा डैश की वैल्यू 0.25 से ये वैल्यू अगर जो है हमारा 6 के बीच में हो जाए तो ट्रांजिशन स्टेट में है, मतलब कि हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ना स्मूथ है ना ही हमारा रफ है। लेकिन अगर ये डेल्टा स्टार और फिर के बाई डेल्टा स्टार की वैल्यू अगर हमारा 6 से ज्यादा हो गया तो इसे बोला जाएगा कि रफ बाउंड्री है, रफ बाउंड्री है। जो हमारा सरफेस है वो हमारा रफ है कब, जब के बाई डेल्टा स्टार की वैल्यू 6 से ज्यादा हो, अगर हमारा वैल्यू 0.25 से कम है देन स्मूथ बाउंड्री, अगर 0.25 to 6 के बीच में है तो उसे बोला जाएगा कि ट्रांजिशन स्टेट में है ये, ठीक है। तो इसी को अगर इस तरह ना देखे हम लोग रिनॉल्ड्स नंबर के टर्म में लिखे तब भी हम लोग लिख सकते हैं। डेल्टा स्टार के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11.6 न्यू बाई यू स्टार। डेल्टा स्टार का भी हमने एक्सप्रेशन बताया कि क्या है, डेल्टा स्टार इज इक्वल टू 11.6 बाई न्यू बाई यू स्टार। अब इसके वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो के बाई 11.6 न्यू बाई यू स्टार। अगर यहाँ पे हम लोग देखा जाए कि के बाई डेल्टा स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो के बाई
11.6 न्यू बाई यू स्टार, मतलब क्या हो गया, यू स्टार ऊपर चला गया। अब ये k इंटू यू स्टार बाई न्यू, यही तो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है भैया। हम लोग लिखते थे, क्या लिखते थे, रो वी डी बाई मी या वी इंटू डी डिवाइडेड बाई न्यू, तो यही तो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है। तो रेनॉल्ड्स नंबर के टर्म में भी हम लोग बता सकते हैं ये वाला वैल्यू, अगर k बाई डेल्टा डैश लेस देन 0.25 और 0.25 को 11.6 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर इधर ले गए तो ये वाला अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर किससे कम, तो 0.25 इंटू 11.6, देखो क्या हो जाएगा वैल्यू, 0.25 इंटू 11.6, ये वैल्यू जो आ गई 2.9। मतलब कि बोला जाता है कि अगर ये वैल्यू जो है u स्टार इंटू के डिवाइडेड बाई न्यू अगर हमारा लेस देन 3 है, देन इट इज ए स्मूथ बाउंड्री। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्टार, यहाँ पे अगर पुट करो, अगर दूसरे फॉर्म में हम लोग लिखे तो क्या हो जाएगा, k बाई डेल्टा स्टार को हमने बोला कि लेस देन अगर 0.25 है तो क्या हमने बोला कि स्मूथ बाउंड्री है, स्मूथ बाउंड्री। तो यहीं पे तो ये वैल्यू है k बाई डेल्टा स्टार के जगह पे हमने क्या रख दिया 11.6 न्यू, और यू स्टार ऊपर चला गया तो यू स्टार दिस शुड बी लेस देन 0.25, तो क्या हमारा होना चाहिए स्मूथ बाउंड्री। अब यहाँ पे 11.6 को उधर ले जाइए तो क्या बच गया k इंटू यू स्टार डिवाइडेड बाई न्यू, इसकी वैल्यू अगर हमारा ये वैल्यू आ रहा है 2.9 अप्रोक्सीमेटली, इसको बोला जाएगा 3, देन इट इज ए स्मूथ बाउंड्री। तो ऑप्शन में दोनों तरह से रहेगा, ऑप्शन में आपको या तो k इंटू यू स्टार बाई न्यू के टर्म में रहेगा या तो आपका k बाई डेल्टा स्टार के टर्म में रहेगा, तो उससे दोनों चीज सेम है। यहाँ पे हमने 11.6 इंटू 0.25 किया, ये वैल्यू जो आया है वो 2.9 आया है। उसी तरह अगर हमारा जो वैल्यू है अगर रफ बाउंड्री बोलेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा k बाई डेल्टा स्टार की वैल्यू जो है वो किससे ज्यादा होना चाहिए बताइए, 6 से ज्यादा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा रफ बाउंड्री, रफ बाउंड्री। तो उसी तरह आप डेल्टा स्टार की वैल्यू को रख दो, जैसे डेल्टा स्टार की वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा k इंटू यू स्टार डिवाइडेड बाई न्यू, इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए 11.6 इंटू 6, तो देखो कितना आ रहा है 11.6 इंटू 6, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 69.6, मतलब कि इसके वैल्यू को अगर बोला जाए कि 70 से ज्यादा अगर हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा रफ बाउंड्री। तो ऑप्शन दोनों तरह से रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है कि किस फॉर्म में दिया हुआ है। आप खोजते रहोगे कि ना 0.25 था ना 0.25 से 3 था, सॉरी ना तो वैल्यू जो है हमारा 0.25 से 6 के बीच में था ना ग्रेटर देन 6 था। तो आप पैरामीटर भी तो देखो, पहले जो हमने बताया है कि जो पैरामीटर है जो पैरामीटर है वो k बाई डेल्टा स्टार था, अब वो ऑप्शन में दे दिया k इंटू यू स्टार बाई न्यू वेदर इट इज लेस देन 3 इन बिटवीन द सॉरी वेदर इट इज लेस देन 3 और इन बिटवीन 3 to 70 और ग्रेटर देन 70। तो अगर 3 से कम है लेकिन पैरामीटर चेंज हो गया है ना, यहाँ पे आपको k इंटू यू स्टार आ गया है, पहले जो वैल्यू था वो k बाई डेल्टा स्टार था, जहाँ पे आपको तो यहाँ पे शेयर वेलोसिटी निकालो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी से निकालो और k की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हाइट ऑफ रफनेस कितना mm है, उससे आप कंपेयर कर लीजिए। अगर ये 3 से कम आ रहा है तो हमारा स्मूथ बाउंड्री है, अगर 3 to 70 के बीच में आ रहा है देन रफ ट्रांजिशन है, और अगर 70 से ज्यादा आ रहा है देन इट विल बी द रफ बाउंड्री। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा जो हमारा ये वेदर इट इज हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ और रफ है, तो इधर आप निकाल लो एक फैक्टर k बाई डेल्टा स्टार या तो k इंटू यू स्टार बाई न्यू की वैल्यू को निकालो और कंपेयर कर लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने निकाला है, तो अब पाइप को क्लासिफाई किया गया है कि वेदर इट इज ये पाइप जो हमने जो लगाया है वो स्मूथ पाइप है या रफ पाइप है। हमारा पाइप जो है वो क्या है, जो जिससे वाटर फ्लो हो रहा है वो स्मूथ है या रफ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा वेलोसिटी जो होगा वो चेंज होगा टर्बुलेंट फ्लो में। तो वो भी हम लोग देख लेंगे। हमने जनरल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया है, u max माइनस u बाई यू स्टार दैट इज 2.5 ln r बाई वाई। इसी को जब रखेंगे और बाउंड्री कंडीशन जब हम लगाएंगे कि जब y की वैल्यू जो जब है हमारी 0 हो जाएगी तो उस टर्म पे हमारा जो है वेलोसिटी जो हो जाएगा वो हमारा जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि y की वैल्यू को जैसे 0 रखेंगे तो हमारा क्या है जो है या जो होगा वो हमारा वैल्यू जो है माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उसी तरह जब बाउंड्री कंडीशन जब हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आ गया है, ये एक्सप्रेशन को याद रखना है। डेरिवेशन जो है वो ऑलरेडी बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो यही चीज आएगा, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। आप एक्सप्रेशन याद रखिएगा कि जब हमारा टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जब हमारा पाइप स्मूथ है। एक चीज का ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पे दो चीज, पहला क्या कि हमारा जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है, और दूसरा चीज क्या है कि पाइप जो है वो स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है, मतलब कि इसमें कुछ रफनेस नहीं है,
ठीक है, तो वहां पे हमने क्या, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आया है u by u स्टार इज इक्वल टू 5.75 log 10 u स्टार इंटू वाई डिवाइडेड बाई न्यू प्लस 5.5। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो पहले हमने डिराइव किया है वहां पे ln था, तो हमने log में चेंज कर सकते हैं, वहां पे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया उस एक्सप्रेशन को, तो वही 5.75 आ गया है। भैया पहले जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ ln है, तो log में जब चेंज करेंगे तो 2.5 इंटू लॉग में जब आप चेंज करो तो 2.303 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो वही चीज आएगा। तो उसी चीज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो आया है ये एक्सप्रेशन आया है। बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द स्मूथ पाइप एंड द फ्लो इज टर्बुलेंट। दो चीज का बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमारा फ्लो जो होना चाहिए वो टर्बुलेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप रेनॉल्ड्स नंबर निकालो, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि फ्लो हमारा लैमिनार है या टर्बुलेंट है। उसके बाद फिर देखो कि पाइप के बारे में अगर कुछ बोला गया है क्या, कि वेदर इट इज स्मूथ और रफ, वेदर आवर पाइप इज स्मूथ और रफ। अगर स्मूथ है देन वी कैन अप्लाई दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे फिर जो टर्म जो है वो हमारा क्या है, u जो है हमारा जनरल वेलोसिटी या लोकल वेलोसिटी, ये जो u स्टार है इसके बारे में हमने बोला कि ये क्या है हमारा शेयर वेलोसिटी, और u स्टार यहाँ पे भी शेयर वेलोसिटी। y जो है वो कहाँ से, पाइप वॉल से डिस्टेंस है y का, इस चीज का बस ध्यान में रखना है हमारा जो पाइप है, और न्यू जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, और ये जो सारा जो कांस्टेंट टर्म है। उसी तरह बात उठती है कि जब हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन टर्बुलेंट फ्लो में ही अगर रफ है तब क्या हो जाएगा, व्हेन द, सो दूसरा एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पे लिखा है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन रफ पाइप, यहाँ पे भी हमने रेशियो लिया है जनरल वेलोसिटी या लोकल वेलोसिटी टू द शेयर वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू 5.75 log टू द बेस 10 y by k प्लस 8.85। अब यहाँ पे k क्या है, तो कैपिटल K है, वही एवरेज हाइट ऑफ रफनेस कितनी है प्लस 8.5, उससे हम लोग निकालेंगे। जब इन दोनों इक्वेशन को मर्ज किया जाए कि हमें एक जनरल वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, वेदर द पाइप इज स्मूथ और रफ, तो यहाँ पे उसको हम लोग जैसे जनरलाइज करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। सबसे पहले तो इससे पहले हम लोग देख ले कि जहाँ पे अगर हम लोग इंटरेस्टेड है कि एवरेज वेलोसिटी के टर्म में ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, हमने यहाँ पे लोकल वेलोसिटी बाय शेयर वेलोसिटी लिया है। जब हमें एवरेज वेलोसिटी का अगर हमें निकाला, बिकॉज डिस्चार्ज जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो वहां पे आपको एवरेज वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज जब वंस वी हैव कंप्यूटेड द एवरेज वेलोसिटी देन वी कैन कंप्यूट द डिस्चार्ज इनटू एरिया, डिस्चार्ज कैन बी कंप्यूटेड एरिया इनटू एवरेज वेलोसिटी इनटू एरिया। सो वहां से हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, हमने उसमें जो है आपका बाउंड्री कंडीशन जो है वो चेंज करके, और यहाँ पे हमने दूसरा रेशियो निकाला है स्मूथ पाइप के लिए, दैट इज u average by u star that is equal to 5.75 log to the base 10 u star into r by nu plus 1.75। और फिर रफ पाइप के लिए हमने बताया कि जो रेशियो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी बाय शेयर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 5.75 log to the base 10 r by k plus 4.75 where k is the average height of roughness, r जो है radius of the pipe, u star is the shear velocity, nu is the kinematic viscosity, u average is the average velocity of the flow एंड यू स्टार जो हमारा शेयर वेलोसिटी। जब हमारा इन दोनों को मर्ज किया जाएगा तो हमारा एक एक्सप्रेशन आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, तो वहां पे रहेगा कि वेदर द पाइप इज स्मूथ और रफ, उससे हमें मतलब नहीं है, जब हमारा दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। इसलिए मैंने बोला कि फॉर बोथ स्मूथ एंड रफ पाइप u माइनस यू एवरेज, इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है, बिल्कुल हर जगह ये काम आएगा। लोकल वेलोसिटी माइनस एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय शेयर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 5.75 log टू द बेस 10 y by r प्लस 3.75। अब यहीं पे हमने इसको इस तरह लिखा है, क्या हमने यहाँ पे लगा दिया कि जब y की वैल्यू जब कैपिटल R हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, अभी हमने बताया कि जब ये y की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे मैक्सिमम जो लोकल वेलोसिटी है वो किसमें चला गया, मैक्सिमम वेलोसिटी में, उसी चीज को लिखा गया है। व्हेन y, यहाँ पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे व्हेन y इज इक्वल टू r, तो यहाँ पे हमारा जो है लोकल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया। तो उसी चीज को हमने लिखा है यहाँ पे u इज इक्वल टू यू मैक्स माइनस यू एवरेज डिवाइडेड बाय यू स्टार। अब जब y जब r है तो यहाँ पे भी y इज इक्वल टू r रखोगे तो ये log 1 जो है वो 0 हो जाएगी, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो वैनिश हो गया, 0 हो गया, तो क्या बच गया 3.75। दिस इज द की, और ये आपको याद रखना है, ये एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को याद रखे तो टर्बुलेंट फ्लो में आपका अगर वेलोसिटी या डिस्चार्ज से अगर पूछा जाएगा तो वो आपका निकल जाएगा होपफुली। लेकिन सारा चीज अगर वो बोल दे कि स्मूथ पाइप है तब तो हमें फिर यही एक्सप्रेशन को लगाना होगा, ठीक है, तो ये उस एक्सप्रेशन को भी याद रखिएगा। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने लिया है आज का, कि वेदर, ये पहला क्वेश्चन तो इसी तरह पूछता है कि आपका जो बाउंड्री है वो स्मूथ है या रफ है। तो अभी मैंने बताया था
कि ये जो बाउंड्री स्मूथ है या रफ है उसके लिए एक फैक्टर होता है जो क्या मैंने बताया कि केएस बाई डेल्टा या के बाई डेल्टा स्टार या डेल्टा डैश भी बोलते हैं उसको, लैमिनार सब लेयर। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि द फ्लो ऑफ वाटर मास डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दे दी है कितना 1000 kg पर मीटर क्यूब। जो दिया हुआ है पहले उसको सबसे पहले तरीका जो है आपका प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने का या अप्रोच करने का, तो जो व्हाट एवर द गिवन डाटा उसको आप कलेक्ट कर लो। काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो कितना दिया हुआ है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन ए कमर्शियल पाइप हैविंग रफनेस। जो कमर्शियल पाइप है उसकी हाइट ऑफ रफनेस की वैल्यू दे दी है जिसको केएस से डिनोट किया गया है, कितना है 0.12 mm। इल्स एंड एवरेज शियर स्ट्रेस टर्नआउट की वैल्यू आपको दे दिया है कितना 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ केएस बाई डेल्टा डैश, डेल्टा डैश या डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार क्या है आपका, फिर से वही लैमिनार सब लेयर की थिकनेस है। सबसे पहले डेल्टा डैश या डेल्टा स्टार निकाल लीजिए। डेल्टा डैश और डेल्टा स्टार हमने बताया है कितना है 11.6 न्यू बाई यू स्टार। अब आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है लेकिन शियर वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, तो हमने बोला है कि शियर वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ टॉ नॉट डिवाइडेड बाई रो। आपका शियर स्ट्रेस दे दिया है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, दैट इज 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो 600 डिवाइडेड बाई डेंसिटी, डेंसिटी कितना है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से आप यू स्टार निकाल लीजिए कितना आ रहा है, तो इट विल बी 600 डिवाइडेड बाई 1000। ये वाली वैल्यू जो आ गई ये 0.775। अब पुट द वैल्यू ऑफ यू स्टार, यू स्टार की वैल्यू को निकालो और वहां से लैमिनार सब लेयर थिकनेस निकाल लीजिए डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार कितना हो जाएगा 11.6 इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी दी हुई है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई यू स्टार, यू स्टार की वैल्यू कितनी है 0.775। ये वैल्यू कितनी आ गई देख लो, तो दिस वैल्यू इज 11.6 into 10⁻⁻6 divided by 0.775. So it is coming 1.496 into 10⁻⁻5। लेकिन ये वैल्यू जो आएगा वो किस में आएगा, बिकॉज हमने सारा चीज जो लिया है वो मीटर और इसमें लिया है, तो ये मीटर में आ गया। अब आप निकाल लो के एस बाई डेल्टा डैश या डेल्टा स्टार, वो कितना हो जाएगा, तो के एस की वैल्यू हाइट ऑफ रफनेस दी हुई है 0.12 mm। तो यहाँ से कितना आ गया 0.12 into 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.496 into 10⁻⁻5। तो यहाँ से हमारा एक वैल्यू आ गया। इसी के रेशियो से हम लोग पकड़ लेंगे कि क्या हमारा जो वहाँ पे सरफेस जो है वेदर इट इज हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ और रफ और ट्रांजिशन है। तो यहाँ पे हम लोग पहले वैल्यू निकाल लेते हैं कितना है 0.12 into 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.496 into 10⁻⁵। ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 8.02। ये वैल्यू जो है वो 8.02 है। ये किससे ज्यादा है 6 से ज्यादा है। जब मैंने पहले ही बोला था कि अगर k बाई डेल्टा स्टार से अगर हम लोग कंपेयर करें तो वेदर इट इज लेस देन 0.25 और इन बिटवीन 0.25 to 6 और ग्रेटर देन 6। अगर ये 6 से ज्यादा है मतलब हमारा क्या हो गया, ये बाउंड्री जो है हमारा क्या है रफ बाउंड्री है, रफ बाउंड्री। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था कि k बाई डेल्टा स्टार की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन को इस तरह ना पूछ के वो बोला दिया ऑप्शन जैसे बना दे वो, जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आंसर जो आपका हो गया वो दैट इज 8.02। लेकिन यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना हो तो यहाँ पे लिख देगा कि पाइप सरफेस जो है वो किस तरह का है, वेदर इट इज स्मूथ, ऑप्शन है स्मूथ इन ट्रांजिशन स्टेट या आपका रफ है। तो आपको इससे भी हम लोग सेम अप्रोच होगा, सिर्फ वैल्यू आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे, फॉर ए टर्बुलेंट फ्लो इन ए पाइप ऑफ डायमीटर 300 mm। सब लोग कैलकुलेटर निकाल के इसे कैलकुलेट करिए, सब लोग कैलकुलेट करिए इसको। बोला जा रहा है कि एक टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहला तो की है कि हमारा टर्बुलेंट फ्लो है। अगर नहीं देता सीधे बोलता फ्लो तो आपको रिनॉल्ड्स नंबर पहले निकालना होगा और रिनॉल्ड्स नंबर से डिसाइड करना होता कि वेदर द फ्लो इज लैमिनार और टर्बुलेंट। अब जो बोला जा रहा है कि पाइप का डायमीटर जो है वो कितना है 300 mm, डायमीटर जो है वो कितना है 300 mm। तो यहाँ से हम लोग रेडियस बता सकते हैं कि कितना है, रेडियस जो हो गया वो कितना 150 mm। बोला जा रहा है कि फाइंड द डिस्चार्ज। अब जैसे डिस्चार्ज बोला जा रहा है तो मैंने पहले ही बोला है कि डिस्चार्ज के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया इंटू एवरेज वेलोसिटी, एरिया इंटू एवरेज वेलोसिटी। बार बार ये चीज बोला जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी हमें कंप्यूट करना होगा। व्हेन द सेंटर लाइन वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो सेंटर लाइन मैंने पहले ही बोला है कि सेंटर पे जो वेलोसिटी होगा वो कौन सा वेलोसिटी होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा जब y की वैल्यू r के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखे कि व्हेन y इज इक्वल टू r,
तो सेंटर लाइन की वेलोसिटी यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो कितना दिया हुआ है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। और बोला जा रहा है कि वेलोसिटी एट ए पॉइंट 100 mm फ्रॉम द सेंटर। अब अगर पाइप को पहले मैं बना दूं और आप अच्छे से समझ लो पहले क्या बोला जा रहा है। ये लेट अस अज्यूम कि ये हमारा पाइप है, ये पाइप है और ये सेंटर लाइन है इसका। अब ये पाइप का जो है पूरा जो डायमीटर है वो कितना है, 300 mm, और रेडियस जो है हमारा वो कितना है, 150 mm। दिस इज 150 mm। अब पहला तो बोला जा रहा है कि ये सेंटर लाइन वेलोसिटी एट द सेंटर दैट इज इक्वल टू यू मैक्स, और ये वैल्यू जो है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब बोला जा रहा है दूसरा कि जब वेलोसिटी कहाँ पे, जो लोकल वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी एट ए पॉइंट 100 mm फ्रॉम द सेंटर, यहां से आपका 100 mm है, तो इधर से कितना हो गया, y की वैल्यू हम लोग लेते हैं वॉल से, मतलब कि y की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये पूरा का पूरा 150 है, ये 100 है, तो इधर से कितना हो गया 50। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन y इज इक्वल टू 50 mm देन द स्मॉल u इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन y इज इक्वल टू 50 mm देन u इज इक्वल टू कितना है, 1.6 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है, हमारे पास पाइप कुछ भी नहीं बोला गया है, तो क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन, देखिए u माइनस यू एवरेज डिवाइडेड बाई यू स्टार इज इक्वल टू 5.75 log 10 y बाई आर प्लस 3.75। इसको लिख दीजिए आप पहले, तो u माइनस यू एवरेज डिवाइडेड बाई यू स्टार दैट इज इक्वल टू 5.75 log टू द बेस 10 y बाई आर प्लस 3.75। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है u माइनस यू एवरेज बाई यू स्टार दैट इज इक्वल टू 5.75 log 10 y टू द y बाई आर प्लस 3.75। अब यहाँ पे देखो जब y की वैल्यू कितनी है, जब y की वैल्यू जो है हमारा, यहाँ पे देखिए जब y की वैल्यू जो है 50 mm है, तब वेलोसिटी कितनी है, 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो पुट द वैल्यू ऑफ 1.6 माइनस यू एवरेज डिवाइडेड बाई यू स्टार दैट इज इक्वल टू 5.75 log टू द बेस 10, और y की वैल्यू कितनी है 50 mm डिवाइडेड बाई रेडियस जो है वो आपका 150 है प्लस 3.75। इसकी वैल्यू को निकाल लो कितना आ रहा है, तो 5.75 इंटू लॉग टू द बेस 10, और ये वैल्यू जो हो गई 1/3, 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3.75, ये वैल्यू जो आ गई आपका 1.006। तो यहाँ से 1.6 माइनस यू एवरेज, सब लोग चेक करें और कैलकुलेशन को देखो कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। सो 5.75 लॉग 1/3 प्लस 3. ये वैल्यू जो वैल्यू आ रही है 1.007, ये पहला इक्वेशन हमने मान लिया। अब मैक्सिमम वेलोसिटी भी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने क्या बोला है कि जब हमारी क्या हो जाए, y की वैल्यू जो है एग्जैक्टली r हो जाए, तब हमारी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है। अब ये इसमें पुट कर दो, व्हेन y इज इक्वल टू r, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो गया, बिकॉज y इज इक्वल टू r बाई r, log 1 की वैल्यू जीरो होती है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा यहीं से, तो व्हेन हम लोग यहीं पे लिखेंगे कि व्हेन y इज इक्वल टू r, तो u जो हमारा लोकल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, u max माइनस u एवरेज, u max माइनस u एवरेज डिवाइडेड बाय u स्टार दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 3.75। ये जो वैल्यू है ये तो 10 हो गया, तो ये 3.75। अब आपकी u max की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, मैक्सिमम वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, सो 2 माइनस u एवरेज, सॉरी 2 माइनस u एवरेज डिवाइडेड बाय u स्टार दैट इज इक्वल टू 3.75। ये इक्वेशन नंबर 2 हमने मान लिया है, और ये 1 मान लिया है। अब u स्टार यहाँ पे नहीं निकाल सकते हम लोग, बिकॉज की शेयर स्ट्रेस दिया नहीं हुआ है। अगर 1/2 कर दे तो दोनों में आपका डिनोमिनेटर में है आपका u स्टार, तो कैंसिल हो जाएगा, या तो 2/1 कर दीजिए। तो हमने ऑपरेट कर दिया क्या, ऑपरेट इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 2 माइनस u एवरेज डिवाइडेड बाई u स्टार तो कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस u एवरेज, 1.6 माइनस u एवरेज दैट इज इक्वल टू 3.75 डिवाइडेड बाई 1.00, ये कितनी थी 1.007, सो 1.007, 3.75, ये लगभग वैल्यू जो है 3.75 डिवाइडेड बाई 1.007, तो ये वैल्यू जो आ गई 3.724। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 3.724,
1.6 इंटू 3.724, ये वैल्यू कितनी आ गई? 5 ये वैल्यू जो आ गई 5.9584 माइनस 3.724 यू एवरेज, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस यू एवरेज। अब यहाँ पे यू एवरेज है तो यू एवरेज को उधर ले जाओ और इसको -2 इधर ले आओ, तो क्या हो गया? 5.9584 -2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 3.9584, दैट इज इक्वल टू आपका यू एवरेज कितना हो जाएगा? 3.724 माइनस यू एवरेज, तो ये कितना हो गया? 2.724, तो 2.724 यू एवरेज। तो यहाँ से यू एवरेज निकाल लीजिए, कितना आ गया? एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 3.9584 डिवाइडेड बाई 2.724, तो ये वैल्यू जो आ गई, ये एवरेज वेलोसिटी जो आ गई 1.45 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे आपका एवरेज वेलोसिटी आ गया तो डिस्चार्ज निकाल लो, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया इंटू यू एवरेज। अब एरिया क्या हो जाएगा? π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। डायमीटर जो है आपका कितना है? 300 mm, तो 300 mm डिवाइडेड बाई 1000, मतलब कितना हो गया? 300 डिवाइडेड बाई 1000 स्क्वायर इंटू यू एवरेज जो है आपका 1.45 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप निकाल लो कितना डिस्चार्ज आ रहा है? 0.25, और वी कैन राइट पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1000 स्क्वायर इंटू 1.45, तो ये वैल्यू जो आ गई आपकी डिस्चार्ज दैट इज इक्वल टू 0.103 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ से आपका डिस्चार्ज निकल गया टर्बुलेंट फ्लो में।